اللہ نہ کرے کبھی ہمارے مقدر کا حصہ بنے۔ اب ایک چیز میں آپ کو دکھا رہا ہوں جو دیکھنے کے لائق ہے اور آپ کی طبیعت اشش کر اٹھیں گی، ذرا اس پہ میں تبصرہ کر دوں۔ اللہ یاری کو بہت بڑا علم کا پہاڑ سمجھتے ہیں لوگ، اور علم ہی کا پہاڑ ہوگا، علم کا پہاڑ تو ہو نہیں سکتا۔ بہت بڑا توپ، بہت بڑا ترم خاں کہ اس کے مقابلے کا کوئی ہے ہی نہیں۔ یہ دلے موالی میلائی طبقہ وہاں آ کر اس کے علم کی تعریف کر رہا، اس کے مقابلے میں مجھے مفتی اختر حسین علیمی کو، حضور قائد ملت کو، حضور محدث کبیر سرتاج علماء کو ہیچ سمجھ رہا ہے کہ بہت قابل ہے، بہت قابل ہے۔ اتنا بڑا قابل آدمی قرآن کیسے پڑھتا ہے ذرا سنیے اور ہنسیے یا ماتم کیجیے۔ الاتقى الذي يؤتي ماله يجنبها گھٹیا پھر غلط قرآن سيجنبها نہیں ہے۔ دیکھا آپ نے قرآن کریم کا وہ صفحہ، قرآن کریم کے اندر یہ کیا ہے؟ وَسَيُجَنَّبُ ہے، اور 6 مرتبہ جنبو پڑھا اس نے۔ کتنی مرتبہ؟ 6 مرتبہ۔ بابا کھپولی کے پنچر پیر صاحب جیسے آپ پنچر ہونے کے بعد کبھی بننے والے ہو نہیں، پوری طرح پھٹ چکے ہو، یہی حال اس کا ہے کہ بے وقوف کو کتاب اللہ پڑھنی نہیں آ رہی ہے، قرآن کریم پڑھنا نہیں آ رہا ہے، اور تم کہتے ہو میں اس سے مناظرے میں ڈر گیا۔ ارے ہمارے مدرسے میں، ہماری درسگاہ میں جو آخری صف میں بیٹھنے والا بچہ ہے نا، وہ بھی اس کو ناکو چنے چبا دے گا۔ اس بے حیثیت آدمی کو، 2 ٹکے کے آدمی کو، اس غلیظ کو، اس لعین کو، اس کافر اعظم کو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہر امت کا ایک فرعون ہوتا ہے۔ میری امت کا فرعون کون ہے؟ میری امت کا فرعون ابو جہل ہے۔ میں کہتا ہوں اسی طرح ہر صدی میں ایک فرعون دیکھنے میں آتا ہے، اس صدی کا فرعون نلہ یاری رافضی بدبخت ازلی ہے۔ قرآن پڑھنا نہیں آ رہا۔ آپ قرآن میں دیکھیے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى ہے، جنبو پڑھ رہا ہے۔ کیا جواب ہے بابا اس کا؟ ذرا اگلی لائیو میں پوچھنا کہ آپ نے جنبوها الاتقى کو جنبو کیوں پڑھا؟ بابا کچھ تو شرم کر یار۔ نارالعین جس کی جوتیوں میں تم مجھے بٹھا رہے تھے نا، اور جس کو تم بہت بڑا توپ سمجھ رہے تھے اپنی نگاہ میں، جسے عرش اعظم پر رکھے تھے اور مجھے تحت الثری میں آپ نے رکھا تھا، اس کے علم کا یہ حال ہے کہ اسے کتاب اللہ پڑھنی نہیں آتی ہے، قرآن کریم پڑھنے پر وہ بندہ قادر نہیں ہے۔ اور ایسے ہی یاد ہے نا پچھلے لائیو میں نے دکھایا تھا عالمگیری جو زمانے حضرت اورنگزیب میں لکھی گئی، اس کو امام احمد رضا کی تصنیف کہہ رہا ہے۔ ہمارے نزدیک تصویر حرام ہے تو شرک کا قول منسوب کر رہا ہے کہ لوگ شرک کہتے ہیں، اور امام احمد رضا نے ہر بدعتی کو کافر کہا، سراسر جھوٹ۔ ارے ایسے جھوٹے مکار جس کو قرآن پڑھنا نہ آتا ہو، اس کی ایک حیثیت میں آپ کو دکھاتا ہوں، پھر آگے گفتگو کروں گا۔ 1 منٹ۔ یہ جو ہندوستان کے چھٹے ہوئے رافضی ہے نا، نام نہاد سنی، میں نے بارہا کہا کہ سنڈاس پہ چاندی کا ورق لگانے سے اصلیت نہیں بدلتی ہے، ورق ہٹا کے اندر کی گندگی دیکھو۔ یہ رافضی جو لائیو کے اندر آتے ہیں نا، ان سے میرے بارے میں رائے لیتا ہے کہ صوفی ارشد آپ کیا فرماتے ہیں؟ وہ حیدرآباد کا کان صاف کرنے والا، آپ کیا فرماتے ہیں بتاؤ؟ انہوں نے ایسے فرما دیا۔ ارے ان کی حیثیت تو پتا کر ہندوستان میں آ کے کون ہے یہ۔ میرے بارے میں رائے لینا ہو تو بریلی شریف کا مرکز، الجامعات الاشرفیہ، الجامعات العلیمیہ، الثقافت السنیہ، جتنے بریلوی علماء ہیں، بریلوی تنظیمیں ہیں، سنی مشائخ ہیں، ان سے معلوم کر کہ صوفی کلیم حنفی، مفتی کلیم حنفی کون ہے۔ تو ان جہلا سے معلوم کر رہا ہے، لیکن خود تیرے بارے میں تیری جماعت کے ایک بزرگ عالم کی رائے کیا ہے، ذرا سنیے آپ حضرات۔ شیطان یاری آپ وہ ہو جو کابل سے آئے تھے، آپ کو نکالا گیا ہے مدرسہ مراشی سے۔ یہ بندہ کابل سے آیا ہے، پڑھا لکھا بھی نہیں ہے، وہیں کا طالب علم ہے، وہیں کا مسخرہ ہے۔ اور کیوں مسخرہ میں نے بولا، میں اسی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا۔ یہ گالیاں دینا، گستاخی کرنا آپ کی کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ قم سے ہے۔ آپ وہ بندہ ہے جو جب تمام علماء آپ کو نکالا تو باقاعدہ آپ کا نام رکھا گیا مطرود العلماء، اور آپ کو خلا لباس کیا ہے۔ خلا لباس سمجھتے ہیں آپ؟ تو سمجھتے ہیں، لیکن لوگوں کو میں بتا دوں، آفیشلی طور پہ آپ کا امامہ اتارا گیا حوض علمیہ میں، یہاں تک کہ جس کے آپ بڑا سینہ بھر کے آپ نام لیتے نا، آیت اللہ سید محمد شیرازی کا،
उनके दफ्तर से भी आपको निकाला गया, हर दफ्तर से आपको निकाला है, हालांकि जिंदगी में किसी ने सलाम भी नहीं किया होगा इसको। देखा आपने, इस शख्स को इसकी जमात के एक बुजुर्ग आलिम कह रहे हैं इसको खलए लिबास यानी नंगा करके भगाया गया, अमामा निकाला गया, मतरूदुल उलमा, उलमा का ठुकराया हुआ। शिया खुद इसको लाइक नहीं कर रहे हैं। इसने एक वीडियो के अंदर खुमैनी के जो अभी जानशीन है खामनई, उसको जो है मेल प्रोस्टिट्यूट मर्दों की तवाइफ कहा है। ये इतना बड़ा गुस्ताख है कि खुद शिया उलमा इससे बेजार है। अब खुदा की कसम एक चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ, ज़रा कलेजे पर हाथ रख कर देखना कि इस मामले में हत्ता कि शियों का बड़ा तबका भी हसन अल्लाह यारी पे लानत करता है। मस्जिद अक्सा जिस पर यहूदी काबिज है, जो हर मुसलमान के लिए एहतराम का मुक़द्दस मकाम है, अज़मत की निशानी है, उसके बारे में इसकी राय क्या यहूदी एजेंट की। लेकिन ये एक ऐसा जबरा है इसराइल और फिलिस्तीन का, इसमें शियों का कोई दखल नहीं है, क्योंकि मस्जिदुल अक्सा जो है ये कोई मुक़द्दस मस्जिद नहीं है हमारे नज़दीक, क्योंकि मस्जिदुल अक्सा जो है ये कोई मुक़द्दस मस्जिद नहीं है हमारे नज़दीक, क्योंकि मस्जिदुल अक्सा जो है ये कोई मुक़द्दस मस्जिद नहीं है हमारे नज़दीक। मस्जिद अक्सा का जिक्र कुरान में है, सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। पाक है वो ज़ात जो ले गई रात के निसफ हिस्से में अपने महबूब आज़म को मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक, जहाँ अल्लाह के महबूब आज़म अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने तमाम अंबिया की नमाज पढ़ाई और उसी के मिंबर से आप वहाँ तक आपने सैर फरमाई, फिर वहाँ से सफ़र मेराज के लिए तशरीफ़ ले गए, जहाँ कई अंबिया की कब्रें हैं, जहाँ कई अंबिया ने इबादत की है, जहाँ कई अंबिया ने इबादत की। कुरान में जिस मस्जिद का तस्करा है, ये यहूदी एजेंट को देखो, कहता है कि फ़लस्तीन का जो मसला है वो शियों का उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। फिर शिया क्यों कहते हैं कि 57 इस्लामी ममालिक बचाने गए नहीं, हम चले गए, हमको फ़लस्तीनियों का दर्द है। ये तो खुल्लम खुल्ला इनकार कर रहा है कि हमारा मस्जिद अक्सा से कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो कोई एहतराम की जगह नहीं है। बाबा कुछ शर्म करो, नजीसुल आइन कुछ शर्म करो। कितने बड़े खबीस हो तुम, दल्लागिरी के अंदर इतने गिर चुके हो कि हकाइक से चश्म पोशी कर रहे हो। बरी अक्लो दानिश बबायत गिरीस, ऐसी अक्लो फहम पर रोना चाहिए। माज़ अल्लाह रब्बिल आलमीन, कोई इतना गिर जाता है, कोई ऐसा बंदे दरहमो दनानीर बनता है कि माज़ अल्लाह कि उसको समझ में नहीं आ रहा कि मैं किसकी दलाली कर रहा हूँ। जो मस्जिद अक्सा पर भोंकता है, जो यहूदियों की तारीफ करता है, नितिन याहू को अबू बकर उमर से बड़ा कहता है, जो माज़ अल्लाह किताबुल्लाह को गलत पढ़ता है, जो अपने ही उलमा को गाली देता है, तशय्यो की भी जो तौहीन करता है, शियों की अक्सरियत ने इसको नकार दिया है। ये तने तनहा 1.5 ईंट की मस्जिद लेकर अब ये बाबा लोग जो सुन्नियत से शीयत की तरफ जा रहे थे, अब ये ठीक शीयत की तरफ भी नहीं जा रहे, नुसैरियत की तरफ जा रहे हैं। हसन अल्लाह यारी की दलाली में पागल हो चुके हैं। इतने हकाइक देखने के बाद भी आपकी आंख नहीं खुलती। और ये खबीस नजीसुल आइन जो मुझे कहता, गालियां देता है, सैयदना अमीर मुआविया के बारे में इसकी राय देखिए। साहब को तवज्जो दिलाऊंगा कि मुफ्ती साहब, काश आप अपनी उसी ममदूह शख्सियत ही की सुन्नत पे अमल कर लेते कि जिसके दिफा में आप जायज़ व नाजायज़ सारे हरबे इस्तेमाल करते हैं। और वो कौन है? फ़िरौन शाम मुआविया इब्ने अबी सुफियान। सुम्मा माअज़ल्लाह, मौलाए कायनात तो फरमाएं इख्वानुना बगू अलैना, वो हमारे भाई थे जो हमसे अलग हो गए। शिया कुतुब के अंदर मौजूद है। मौलाए कायनात तो उनको भाई कहें, इमाम हसन मुश्तबा तो उनको खिलाफत सौंपें, इमाम हुसैन तो उनकी बैअत करें, और अइम्मे अतहार उनकी ताज़ीम करें, तकरीम करें, वो दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करें। और ये 2 टके का मौलवी मौलाइयों के चंद खनकते सिक्कों को देखकर सैयदना अमीर मुआविया को फ़िरौन शाम कह रहा है। बताओ, फ़िरौन जिसकी नामज़द तकफीर कुरान के अंदर मौजूद है। तो फिर अब मैंने कहा कि अबू बकर और उमर की नामज़द तकफीर दिखाओ, तो इतने छटपटाए क्यों? शराइत को गलत क्यों कहा? मैंने कहा कि शराइत पर बात करने के लिए मेरे घर आओ, 5 लाख का इनाम दूंगा। मेरे घर नहीं आते, अपने घर बुलाते, बहराइच बुलाते, मैं वहां आ जाता हूं। सुन लो, लाइव में जितने सुन रहे हैं, दलाल अल्लाह यारी तो मर जाएगा, मुझसे मुनाजरा नहीं करेगा, और कर लिया
तो खुदाए वहदहू ला शरीक की कसम वो उसकी ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा। मुझसे कहते हो कि तुमने कसम खाई थी मैं 10 को लाइव आऊँगा। मैंने इस पर कसम नहीं खाई थी कि मैं 10 को लाइव आऊँगा, मैंने कहा था मैं वीडियो डालूँगा। और वल्लाह मैंने वीडियो बनाई, रिकॉर्ड किया, 9 GB की वीडियो बनी, वॉइस अलग रिकॉर्ड हुई, वीडियो अलग रिकॉर्ड हुई, लेकिन दोनों को जब मर्ज किया गया तो लिपसिंग मैच नहीं होने की वजह से हमने कहा चलो कैंसिल करो, 11 को लाइव आते हैं। तो मैंने तो वीडियो बनाई, तो मेरी कसम नहीं टूटी। अगर मेरी कसम टूटती भी तो 10 मसाकीन को 2 वक्त का खाना मैं खिला देता या 3 रोज़े रख लेता। कसम का कफ़ारा क्या है मुझे मालूम है ना। अब मुझे तुमसे तो दीन सीखने की ज़रूरत नहीं है। बहरहाल इसने सहाबी रसूल सैयदना अमीर मुआविया को फ़िरऔन शाम कहा। ज़रा बताओ मुसलमानों, तुम्हारे कलेजे लरसते नहीं है? मुझे कहते हो गालियाँ देता है, सख्त ज़बान बोलता है। ये लाइव में आके उलमा को गाली दें, सहाबा को गाली दें, शेखैन को गाली दें, मसाजिद की बेहुरमती करें, मुक़द्दसाते अहले सुन्नत को बुरा भला कहें, ये पक्के मुसलमान। अगर मैंने इन जैसे गुस्ताखान सहाबा व गुस्ताखान उम्महातुल मोमिनीन को बुरा कहा तो लोगों को मेरी बातें छुपती है। अब क्या कर रहे हैं बेरोज़गारों का ये टोला। अच्छा एक बात देखें आप, अल्लाह यारी के जितने भी मुनाजरे हुए होंगे इससे पहले, तो डायरेक्ट ये हुआ कि भाई दावत दी गई, लाइव आए, मुनाजरा हुआ। ये मुनाजरा ऐसा है कि 1 महीने से उसका दर्द सर बना हुआ है। कितने लोगों को लाइव लाता है, उस पर तबसरा करता है, इन टुच्चे लोगों से मेरे बारे में राय लेता है, जो खुद मेरे सामने अगर बैठ जाएं तो हैबत से हग मार देंगे। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। उसका नमूना देख लेना धारावी के मुनाजरे में, जब ये संतरा बैठा हुआ था, ये अतरंगी, सतरंगी, नारंगी, बजरंगी, इसको मैंने कुर्सी से किस तरह जलील करके उठाया था। ये 2 टके के लोग हमारे सामने बैठेंगे, खबीस कहीं के। हाँ, कोई हैसियत है इन कुत्तों की, इन खिंजीरों की, इन सुवरों की? गालियाँ देता तो क्या करूँ, आरती उतारूँ? हरामजादों, सहाबा को बुरा भला कहो और हम चुप रहे, फिर हमारा मर जाना अच्छा है इसी ज़िंदगी से। खुदा की कसम, खुदा वहदहू ला शरीक की कसम, रसूलुल्लाह के किसी साथी पर हम तनकीद बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए कि हमारे नज़दीक वो अल्लाह का इंतखाब है। तनकीद से बाला तर जमात है, उनसे मोहब्बत का हुक्म है, उनके आपसी मसाइल में पढ़ने का हम जैसे टुच्चों को कोई हक़ नहीं है। सब अल्लाह के हवाले कर दो, सब हक़ है, सब सही है। जो उनमें बड़ा है वो ज़्यादा हक़ पर है, दूसरा ख़ताई इज्तिहादी पर है। अल्लाह ताला के यहाँ सबको अज्र मिलने वाला है, सब जन्नत के मज़े लूट रहे हैं। तुम यहाँ पर आपस में बहसें करके एक दूसरे के जो है गटैया दबा रहे हो। ये बेवकूफ़ी छोड़ो और उम्मत को इसमें उलझाना छोड़ दो। तो बहरहाल अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अब मौलवी नजीसुल आयन साहब रोज़ाना तबसरा करते हैं, कुछ ना कुछ टॉपिक लाते हैं। इनका चैनल आप देखेंगे, देखो मैंने बहुत थोड़ी चीज़ें दिखाई है तफसील। मुझसे कहते हैं कि कितनी बात बदला। बात बदल क्यों रही है? जब तुम लाइव आकर कुछ हरकत करते हो तो उस हिसाब से मुझे फिर अगला कदम उठाना पड़ता है। तो इसमें बात बदलना कहाँ है? सीधा सीधा मैंने 19 अप्रैल को चैलेंज दिया कलकत्ता में, उसने कबूल किया, बाबा को मॉडरेटर कहा। मैंने जब तक कुछ कहा नहीं, शराइते मुनाजरा लिख कर दिया। तो जब मैंने शराइते मुनाजरा लिख कर दिया, पढ़कर सुनाया, कुछ शराइत को गैर मुबद्दल कहा, तो उस पर तबसरा किससे हो रहा है? अल्लाह उससे हो रहा है, मौलवी नजीसुल आयन से, घामड़ से, जो मारे हैबत के हाँ सही है। अजीब बात है। तो उससे तबसरा हो रहा। फिर उसके बाद मामला जैसे जैसे उलझते गए, पेचीदा होते गए, तुम जैसे जैसे लाइव आते गए, बकवासात करते गए, उसके ऑपरेटर ने मेरी तस्वीरें बिगाड़ी, बाबा कुछ क्लिपें काट कर छांट कर यहाँ से वहाँ से कसम खाया 10 को। अरे दिखा दे कहाँ मैंने कसम खाया कि मैं लाइव आके शर्तों पर बात करूंगा, तेरे वजन के बराबर मैं तुझे पैसा दूंगा। बिल्कुल नहीं कहा। मैंने 2 बातों पर कसम खाई कि नामू से सहाबा के लिए मैं हमेशा तैयार हूं। दूसरा ये कि मैं 10 को वीडियो डालूंगा जो वाकई मैंने बनाई और मेरी जानिब से पूरी कोशिश करके मैंने टीम को दिया, लेकिन वो हजरात अपलोड नहीं कर पाए। तो ये कोई ऐसा मसला नहीं है कि जिस पर माज़अल्लाह कसम तोड़ने का हुक्म नाफिज होता हो, हुक्म लगता हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहरहाल अब ये बेरोज़गार मौलवी नजीसुल आयन साहब ज़ातियात पर उतर आए। अभी हाल फिलहाल में इन्होंने मेरी 2000 की कुर्बानी पर तबसरा किया। बताओ, बोले 2-2 हज़ार ले रहे हैं, तो कुल मिला के 14। कुछ ये रखते हैं, कुछ सामने जहाँ लोग अरेंज करते हैं उनको देते हैं, फिर उसमें जानवर लेना, फिर कसाई का पैसा, फिर कैसे होता है। बाबा नजीसुल आयन और जितने भी राफजी टोला हैं, ये पूरे राफजी है, सुन्नियों अच्छे से समझ जाओ। ज़रा देखिए इनके हिंदुस्तान में जो राफजियत के बड़े प्रचारक हैं,
नाम देख लीजिए, फेसबुक आईडी पर है, मैं तो नाम लेना भी पसंद नहीं करता है। गंदौड़ा है, मैं बोल रहा हूं उसमें कुछ आ रहा है क्या? आ रहा है? अच्छा, तो देखो फेसबुक पर 1600 रुपए में कुर्बानी कर रहे हैं। राफजियत के बहुत बड़े प्रचारक है, झांसी मुनाजरे में तशरीफ फरमा थे अपने वजूद नामसूद के साथ। तो अब इनसे पूछो 11,200 में एक जानवर, उसमें कुछ तुम्हारा अपना फायदा, हर तंजीम रखती है। आप घर बैठे पैसा दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि अब आगे ये काम करना है, पहुंचाना है, ट्रांसपोर्टेशन है, लोगों से वसूलना है, उसके लिए आदमी रखना है। तो दो पैसा कोई भी इदारा, कोई भी तंजीम, ताकि उससे दीनी काम आगे बढ़े। तो इनका 1600 में कैसे हुआ? इनसे पूछने की हिम्मत है नजीसुल आइन साहब? मेरा तो फिर भी इनसे एक हिस्सा 400 ज्यादा था, जरा पूछिए। तो जो जवाब इनका होगा, मेरा जवाब तैयार है। सुन्नियों, इसीलिए तो बार बार कहता था मैं, देखो बुजुर्गाने दीन जिन्होंने हिंदुस्तान में इस्लाम फैलाया, अपनी उम्रें खपा दी, वतन छोड़ दिया, अजीज बच्चों को छोड़ दिया, खेत खलियान छोड़ दिया, अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए कहां कहां से गैर मानूस इलाके में आए, लोगों में तौहीद को आम किया, लोगों में सुन्नियत को आम किया, दीन को आम किया, विसाल फरमा गए, उनके आस्ताने तामीर हुए, लोगों को फयूज़ व बरक़ात का सिलसिला वहां से शुरू हुआ। लेकिन अब उन खानकाहों की मसनदों पर अक्सर राफजी बैठे हुए हैं और खानकाहें राफजियत फैला रही है। इसीलिए मैंने कहा बंबई में एक अजीमुशान खानका बनेगी और जहां से उलमा को बाकायदा मुनाजिर बनाकर तैयार किया जाएगा, निडर मुनाजिर, जिनके दिल में अल्लाह और रसूल के सिवा किसी का खौफ नहीं।